एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। सबसे पहली खबर मेघालय से, जहां मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने घोषणा की है कि राज्य तेलंगाना की इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह टेक्नोलॉजी से चलाने वाला गवर्नेंस मॉडल अपनाएंगे। हैदराबाद के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि रियल टाइम डेटा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट्स के बेहतर तालमेल से पब्लिक सर्विसेज और इमरजेंसी रिस्पांस को और मजबूत बनाया जाएगा। Other than this automated And videos can also be played if it's video capable. we didn't try the videos. It is just the messages generally. But if it is there, then it's possible. Yes. And one of the fastest in the country. An ATC call center operates on the clock, seamlessly connected to over 1,200 petrol cars and 1,600 locomotives, all equipped with GIS systems and mobile data terminals. it's not that like we'll be using it on a daily basis, but need be. Interesting. So this is one public and this is It is very nice. opportunity to work far beyond what's technology that we have. So we've introduced drones as the first responder. So 100 cameras we just started. This is much smaller, of course, but we're just starting that. Then we're connecting the different towns now, but we are still struggling with the ownership of who is the nodal, who will take the responsibility. You can. This guy said, no, sir. If you give it to them, then they will not be able to handle the technology part. Hyderabad made peaceful and incident-free since 2014, setting a model for so you'll be able to see the White color response. Activa vehicle, white color Activa vehicle. Please do not block free left. Free left. Waiting for the human intervention to happen, that that I remember the 9%. It should happen automatically every day. These kind of basic things, especially on periods like these, are. prevention, but also public safety and traffic management. So we are here in the Telangana Integrated Command and Control Center, and without any doubt, this is most probably one of the best integrated command and control centers in the country, because it's not just the technology that they are using out here, but it is the system that they have developed to really coordinate and really ensure that the aspect of governance is improved and made better by ensuring technology is used, departments coordinate, and the overall services that they want to provide to the people become better. So it's a great example which I think many states should learn, and therefore I have come personally myself to see the work going on here, and I can assure you that we will try to replicate as much as possible from what we have seen here in the Telangana Integrated Command and Control Center, and try to replicate it back in our state of Meghalaya. Thank you so much. मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ किया है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी मर्जर या अलायंस को लेकर अब तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। एमपीसीसी ने कहा कि अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस मामले में कोई फैसला लेती है तो मेघालय कांग्रेस उसी निर्णय का पालन करेगी। साउथ वेस्ट खासी हिल्स के मौकरवट की एक युवा महिला के सुसाइड मामले में पुलिस ने गुजरात से 22 वर्षीय आरोपी सचिन निषाद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। मेघालय पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से सूरत में आरोपी को पकड़ा। मेघालय में ब्लिंकिट की एंट्री को बड़ा झटका लगा है। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कंपनी को ट्रेडिंग लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। परिषद का कहना है कि ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल शिलोंग और आसपास के 4000 से अधिक स्थानीय किराना दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अपार्टमेंट में हुए जबरदस्त विस्फोट से कई लोग घायल हो गए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के तुरंत बाद फायर सर्विस और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचे। विस्फोट के कारणों को पता लगाने के लिए जांच जारी है।
हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि शंकर चमुनी का नज़दीक एक फ्लैट है, NS नाम का एक अपार्टमेंट है, उसमें एक बहुत धमाका जैसा आवाज़ हुआ और इसमें कैजुअलिटी भी हुआ है। तो बाद में हम लोग इधर आए, आके देखा कि एक फ्लैट का ये टोटल जो अपार्टमेंट है उसका एक फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर में ही एक रूम में ऐसा हुआ है। तो ये तुरंत हम लोग फॉरेंसिक टीम को बुला लिया और बॉम्ब स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड, इनको जो होता है, फिर TNG, CL और इलेक्ट्रिसिटी सबको बुला के हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो अभी सारे जो मिला है वो सारे हम लोग सीज किया और सीज करके अभी ले जा रहा है। होपफुली हम लोग बहुत जल्द इसका क्यों हुआ है वो निकाल सकेंगे। NCERT ने पहली बार क्लास 9 की किताब में 1975 की इमरजेंसी का जिक्र शामिल किया है। किताब में इमरजेंसी को भारत के लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है और उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है। ये तो सही बात ना, NCERT ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए NCERT ने उसको विषय में लाए। NCERT ने अच्छा काम किया। राजनीतिक पार्टी का प्लान भी है ये, ऐसा लगता है जो मूवमेंट चलाने की। देखिए, देश में कुछ लोगों के मन में देश को आगे बढ़ने के लिए कुंठा है। वो तरह तरह की रूप बदल के आते हैं। कोई A टीम होता है, कोई B टीम होता है। मुख्यमंत्री भगवंत, देखिए ये कदम NCERT को जो 9वीं कक्षा में जो शामिल किया गया, ये स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि जब हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी लोकतंत्र की हत्या को पढ़ेंगे, आने वाले दिन में कोई शासक लोकतंत्र की हत्या करने का सोच भी नहीं सकेगा। इसीलिए लोकतंत्र हत्या का ये पुस्तक बहुत ही सराहनीय का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए अपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। स्वागत है फिर से आप सभी का। चलिए देखते हैं बाकी की खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करते हुए वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल्स, नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक और एंटी कैंसर दवाओं को QR कोड बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के दायरे में शामिल कर दिया है। अब इन दवाओं की पैकेजिंग पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा, जिससे सप्लाई चेन में दवाओं की पहचान और सत्यता की जांच आसान होगी। एली लिली इंडिया ने भारत में अपनी नई कैंसर की दवा ट्रांसक्राइब लॉन्च कर दी है। CDSCO की मंजूरी के बाद लॉन्च की गई ये दवा RET जीन अल्टरेशन वाले एडवांस्ड कैंसर पेशेंट्स के लिए है। कंपनी के मुताबिक ये दवा कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश भर में E0 FIR प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और DGPs को मिलकर इस व्यवस्था को मजबूत बनाने और साइबर अपराधों की तुरंत जांच सुनिश्चित करने को कहा है।
अब साइबर ठगों की खैर नहीं। मोदी सरकार ने ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है कि शिकायत करते ही ठगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो अब आपको थाने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पूरे देश में E0 FIR लागू करने जा रही है। मतलब आप अपने घर से, मोबाइल से या किसी भी नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध देश के किसी भी कोने में हुआ हो। सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपकी E0 FIR दर्ज होगी, साइबर सेल तुरंत एक्शन ले सकती है और ठगों के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यानी अब ना कोई जुरिस्डिक्शन का बहाना, ना शिकायत दर्ज कराने में देरी। शिकायत करते ही आपको उसकी कॉपी व्हाट्सएप या ईमेल पर ही मिल जाएगी। अगर ये सिस्टम सही तरीके से लागू हुआ तो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के लिए बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे साइबर ठगी कम होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 193 जो प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा ताकि जांच और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की जा सके। यहाँ पर मैं यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 1930 पर सूचना देते ही हम तुरंत बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फंड्स होल्ड और ब्लॉक करा देते हैं। सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि यदि किसी भी प्रकार के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो उन्हें तुरंत समय गंवाए बिना 1930 पर कॉल करें। मणिपुर में सुरक्षा बलों और कुकी नार्को टेररिस्ट्स के बीच भारी मुठभेड़ की खबर है। CRPF ने इलाके में ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ऑपरेशन जारी है और अधिक जानकारी का इंतजार है। शिलांग में मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम को गहरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया, जो इस्लामी नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। शिया मुस्लिम समुदाय के लिए ये मौका इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासी थे, की शहादत को याद करना है। कारबाला की जंग में उनकी कुर्बानी आज भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। काले कपड़े पहने अज़ादार लबान, 12 पत्थर और मोपरिम में इकट्ठा हुए, जहां पारंपरिक ताजिया जुलूस अमन और शांति के साथ सड़कों से गुजरा। जुलूस के दौरान या हुसैन के नारे लगाए गए, ढोल बजाए गए और मार्शिया और नोहा पढ़े गए, जो इमाम हुसैन की याद में गम और अकीदत का इजहार करते हैं।
आज के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।